So, good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, so let's start our class. So, let's check your previous knowledge first. So, can you tell me which type of nutritions occur in plants? Riya, can you please answer this question? Yes, Pragati? Ma'am, autotrophic nutrition. Autotrophic. Yes, very good, Pragati. Very good, Riya. ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है प्लांट्स के अंदर. So, which process is responsible for autotrophic mode of nutrition? Sanchika, can you please try to answer this question? Yes, Riya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, It's photosynthesis. photosynthesis. Yes, very good, Riya and Sanchika. It is photosynthesis. So, which reactions occurs during photosynthesis? Here, No yeah, idea, ma'am. okay, let me give you a hint. The reaction that occurs during a daytime and a one reaction that occurs during a night time. Yes, Pragati, did you know that? Ma'am, is it light or dark reaction? Yes, very good, Pragati. It is light reaction and a dark reaction. So, which cycle is formed by a dark photosynthetic reaction? Is anyone know? Ma'am, Ma'am, we Calvin don't cycle. know. Yes, Sanchika? Ma'am, Calvin cycle. Yes, very good. So this is a Calvin cycle that occurs during a dark photosynthetic reaction. So today we will discuss about or learn about what is Calvin cycle and how it is occur. So we will learn about the Calvin cycle through a role play. So let's go to the role play. So the title of the role play is the Calvin cycle T. So there are some characters. So I am assigning some characters to you. So who wants to play the role of managers? That is Rubisco. Yes, Pragati, Ma'am, very I good. will. So yes, Pragati, you can play the role of manager. The second one is carboxylation team. Who wanted to play this role? Ma'am, me. Yes, Sanchika, very good. So you have to play carboxylation team. Okay, Then ma'am. third one is reduction team. Riya, you wanted to play this set? Yes, ma'am. Okay, so very good. So the fourth one is regeneration team. Prachi, Ma'am, I you will can play play this. this. Yes, very good. So Okay, then ma'am. there is more role also. That was energy provider. That Prachi, you can play this role also. Okay, ma'am. And last one is product manager that can play by Riya. Okay, Okay. ma'am. So let's start our role play. Yes, ma'am. So the role play start from a scene, a factory where the Kelvin cycle take place. एक factory है जहाँ पे Kelvin cycle start हो रही है. So let's go to the scene first. That was carboxylation. Manager assigns the carboxylation team to capture CO2 from the atmosphere. Enzymes works together to attach CO2 to RUBP, forming 3-PGA, 3-phosphoglyceric acid. Prachi. Prachi, is ATP it and audible? NADPH support the process. Yes. Okay. So let's go to the scene 2. That was reduction. Rubisco directs the reduction team to convert 3 PGA into G3P. Enzymes uses energy from energy providers, ATP and NADPH to reduce 3-PGA. Yeah. Glucose begins to take place. Let's go to the scene third. That is regeneration. Rubisco assigned the regeneration team to restore the RUBP.
Enzymes work together to regenerate RUBP from G3P and CO2. ATP and NADPH continue to support the process. Okay, so let's go to the scene 4, that is completion. Rubisco oversees the entire process, ensuring efficient production. Glucose packages and exports the final product glucose to the plant cells. Yes, so यहाँ पे हमारा रोल प्ले खत्म होता है. So did you enjoy this role play? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let me check. तुमने कितना रोल प्ले से सीखा? So I'm asking some questions to you. So what is the role of Rubisco in the Calvin cycle during the carboxylation? कार्बोक्सिलेशन के टाइम उन्होंने रूबिस्को ने क्या रोल था रूबिस्को का? You can please raise your hand who know the answer. That was in first scene. Pragati, did you know? Yes. यस मैम, Yes. उन्होंने एक्चुअली कार्बोक्सिलेशन टीम को वर्क करने के लिए कहा था. Yes. So कार्बोक्सिलेशन टीम को उन्होंने क्या वर्क दिया था? मैम उन्होंने मैम क्या 3 PGA में कन्वर्ट हो रहा था. Yes, very good, प्राची. So basically उन्होंने कहा था कि CO2 को एटमॉस्फेयर से क्या करे, कैप्चर करे और 3 PGA को कन्वर्ट करे. So what happens during the carboxylation step? Sanchika, can you please answer this question? मैम कन्वर्जन टू Yes, yes. 3 नहीं G3P. Yes, ma'am. नहीं, 3 PGA, Pragati said. प्रगति. So basically Ma'am, जैसे अभी fixation हमने of CO2. Yes, very good, Priya. So basically CO2 का फिक्सेशन हुआ था RUBP में, जिसने फॉर्म किया था 3 PGA. So what is the role of regeneration team in the Calvin cycle? Did you remember the regeneration team? उनका क्या रोल था उसमें? प्रगति, does anyone know? Regeneration team basically जो हमारा लास्ट मैम स्टेप है जिसमें बेसिकली उन्होंने यस प्रगति मैम उन्होंने एटीपी और एनएडीपीएच की हेल्प से कुछ यस किया था. आई फॉरगॉट. यस फिर रीजनरेशन, जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, रीजनरेशन दैट मीन्स उन्होंने रीजनरेट किया था वापस से Me? हमारे. मैम may I? मैम may I? यस Okay. मैम रीजनरेशन में जो RUBP था उसने PGA का यूज करके ATP फॉर्म की थी, ऐसा ही कुछ था. यस बेसिकली एटीपी तो उसमें यूज हो रहा था, बट उन्होंने कंपाउंड जो रिस्टोर किया था वो G3P से था हमारा. G3P को रिस्टोर किया था RUBP से. ठीक है. Yeah, मैम. ओके, सो व्हाट इज द ओके पर्पस मैम. ऑफ द रिडक्शन टीम इन द कैल्विन साइकिल? प्राची, रिया, एनीवन नो? No, ma'am, I don't know. मैम basically- इसमें क्या हुआ था, जो प्रोडक्ट था 3 PGA से वो Yes. ATP और NADPH में ब्रेक डाउन हुआ था. या अरे इफ NADPH और ATP बेसिकली ये हमारे एनर्जी प्रोवाइडर है जो सपोर्ट करते हैं प्रोसेस को. उसमें वो कन्वर्जन में हेल्प नहीं करते, जस्ट सपोर्ट करते हैं वो. जैसे कि एज ए एनर्जी प्रोवाइडर था उनका नेम रोल प्ले के अंदर. सो बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन टीम ने जो किया था वो कन्वर्ट किया था 3 PGA को G3P में यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP एंड NADPH. So let's go to our next question. So what is the final product of the Kelvin cycle? So final product क्या बना था? प्रगति, did you know? नो मैम. Ma'am, may I? क्या? Yes. Ma'am, glucose. Yes, very good, Riya. Well done. So basically that was glucose जैसा जो प्रोडक्ट मैनेजर की तरह रिएक्ट कर रहा था. सो लेट्स गो. हमने रोल प्ले के थ्रू समझी कि किस तरीके से स्टेप्स थे केल्विन साइकिल के. तो लेट बी अंडरस्टैंड व्हाट इज केल्विन साइकिल. तो केल्विन साइकिल में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं. दैट फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड वन इज रिडक्शन
एंड थर्ड वन इज रीजनरेशन, जैसे कि वो सीन्स में भी डिवाइडेड किए थे, वो भी इसी के बेसिस पे किए थे। सो लेट्स लर्न द फर्स्ट स्टेप, कार्बोक्सिलेशन। सो कार्बोक्सिलेशन में बेसिकली एक एंजाइम होती है रुबिस्को, जो कैटेलाइज करती है रिएक्शन को आरयूबीपी वाली और CO2 मींस आरयूबीपी एक हमारा कंपाउंड है दैट इज रुबिस्को बाईफॉस्फेट, जो क्या करती है रुबिस्को बाईफॉस्फेट में CO2 का अटैचमेंट करती है, फिक्स करती है और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करती है दैट इज 3 PGA। 3 PGA मींस होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये हमारा राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट है, जिसमें क्या किया, एक एंजाइम है रुबिस्को जिसने रिएक्शन को कैटेलाइज करा, CO2 का अटैचमेंट किया और कार्बन का फिक्सेशन किया। सो बेसिकली इस रिएक्शन को हम कार्बन फिक्सेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें CO2 का फिक्सेशन हुआ है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so let's go to the second step, that is reduction. So did you know the what is the meaning of reduction? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रिडक्शन क्या होता है। Ma'am, reduction is basically addition of Ro- hydrogen to any chemical compound. Ma'am, Yes, very addition good. of hydrogen and removal of oxygen. यस वेरी गुड। सो बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, कुछ भी कह सकते हैं, दैट इज द रिडक्शन प्रोसेस। सो हमारा सेकंड स्टेप में भी रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जैसे कि हमारा भी कार्बोक्सिलेशन टीम, जो कार्बोक्सिलेशन टीम थे, कार्बोक्सिलेशन स्टेप था, उसके अंदर 3 PGA जो फॉर्म हुआ था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अब वो क्या होता है उसमें रिडक्शन होके वो बनता है हमारा ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और जिसकी रिडक्शन की प्रोसेस के लिए, जैसे कि इसमें हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर होगी, इसलिए इसमें जो एक एनर्जी यूज होती है दैट इज ATP एंड NADPH। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हैं हम इसको या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन हुआ किसमें, ट्रायोस फॉस्फेट में, ट्रायोस फॉस्फेट में, और जिसमें क्या हुआ ATP का यूज करके और NADPH का यूज करके ये प्रोसेस क्या हुई पॉसिबल हो पाई। सो लेट्स गो टू द थर्ड स्टेप दैट इज रीजनरेशन। जैसे कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा रीजनरेशन, रीजनरेशन मीन्स इसमें हम रीजनरेट कर रहे हैं जो अपने पहले वाले कंपाउंड को। तो जैसे कि अभी सेकंड स्टेप में हमारा G3P फॉर्म हुआ था। सो रिया कैन यू प्लीज टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ G3P that is formed during the second step? No, ma'am, I can't remember. It's Ma'am, okay. it's So glyceraldehyde 3-phosphate as written on the slide. yes, that is already written in the slide. Riya, you have to observe the slides please carefully. So basically इसमें क्या होता है, जो हमारा G3P मॉलिक्यूल था जो ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेप प्रोड्यूस हुआ था, अब वो क्या करता है, हमारा ग्लूकोज को फॉर्म करता है और रीस्टोर करता है आरयूबीपी जो हमारा फर्स्ट स्टेप में यूज हो रहा था। दैट मीन्स इट फॉर्म इन साइकिल। सो आप देख रहे हैं ट्रायोस फॉस्फेट जिसको हम ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं, इसमें क्या हुआ, रीजनरेशन हुआ, और इस रीजनरेशन प्रोसेस के लिए भी हमें ATP की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और क्या फॉर्म किया इसने, दोबारा से आरयूबीपी को फॉर्म किया। सो आपको साइकिल समझ में आई? Yes, ma'am. ओके, Yes, सो ma'am. बेसिकली अगर हम इस सारे स्टेप्स को कंबाइन करें तो लेट मी लर्न कि राइबोलोज बाईफॉस्फेट दैट इज आरयूबीपी था, जिसने एटमॉस्फेयर से क्या लिया, CO2 और H2O को लिया, और उसमें कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन के कौन सी एंजाइम्स चाहिए होती है, प्रगति डिड यू नो द एंजाइम दैट, अगर आपने रोल प्ले याद किया हो तो उसमें जो मैनेजर का रोल था वो किसने प्ले किया था? Yes, ma'am. Ma'am, Rubisco. यस Rubisco वेरी Rubisco गुड। ने ही enzyme. किया था। यस वेरी गुड। सो बेसिकली इस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को भी करने के लिए हमें रुबिस्को की जरूरत पड़ती है, जो क्या करती है, कार्बन फिक्सेशन करती है और फॉर्म करती है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर क्या होता है इसमें ATP, और फिर अब आता है रिडक्शन। रिडक्शन के स्टेप में जैसे मैंने वो बताया था इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है,
सो एनर्जी प्रोवाइडर हमारा एटीपी एंड एनएडीपीएच होता है, जो क्या फॉर्म करता है, रिड्यूस करता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट को ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। फिर नेक्स्ट स्टेप था हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन के लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, दैट इज एटीपी, और वो क्या करता है, रीजनरेट करता है वापस से आरयूबीपी को, और इसमें ग्लूकोज भी फॉर्म होता है। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस साइकिल? इज एनीवन Yes, हैव ma'am. क्वेरी? Is anyone have any query? You can ask me. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, so let me check कि आपको कितना समझ में आया। So आपको मेरा व्हाइट बोर्ड विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is Yes, visible. ma'am. It is visible. ओके, सो मैं जहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके एक बार शो हो रहा होगा वर्टिकली, तो उसमें टी शो हो रहा है, टेक्स्ट बना हुआ। Yes, ma'am. यस, आप उस टेक्स्ट पे Yes, क्लिक ma'am. करके यहाँ पे लिख सकते हैं। सो आई वांट द आंसर फ्रॉम प्रगति फर्स्ट। सो प्रगति, यू हैव टू राइट द आंसर कि हमें पहले कौन सी एंजाइम रिक्वायर होती है कार्बोक्सिलेशन के लिए। Okay, so the Ma'am, next, is my text is visible? yes, your text is visible. So next, Sanchika, you have to write कि एटमॉस्फेयर से वो कौन सा कंपाउंड लेता है जिसको वो कार्बन फिक्सेशन करता है, जिसका वो। Ma'am, CO2. Yes, please I have write to on the write it. whiteboard. Yes, ma'am. I have write it on the Please whiteboard. write it there. Okay. Okay, so Here it जो is. फर्स्ट स्टेप हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की, दैट फर्स्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं? प्राची, कैन यू प्लीज राइट देयर? Yes, ma'am. यस, प्लीज राइट कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा केल्विन साइकिल का? Carboxylation. प्लीज राइट देयर संचित, प्राची। यस, ओके। सो ओके, टेल मी द कार्बोक्सिलेशन में कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? डियर, कैन यू प्लीज राइट द आंसर? Ma'am, डियर, इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? Ma'am, she is writing Okay. 3-phosphoglycerate. यस, वेरी गुड। एंड द सेकंड स्टेप क्या होता है हम केल्विन साइकिल का? प्रगति, कैन यू प्लीज राइट द आंसर देयर? yes, ma'am. Ma'am, it is reduction. यस, वेरी गुड। एंड द लास्ट स्टेप क्या होता है प्राची, कैन यू प्लीज राइट देयर? Yes, ma'am. It is regeneration. यस, वेरी गुड प्राची। सो बेसिकली रुबिस्को जो फर्स्ट एंजाइम थी जो यूज हुई थी कार्बोक्सिलेशन के स्टेप में, देन हमारा रिडक्शन स्टेप आता है, द थर्ड वन इज रीजनरेशन। सो आपको केल्विन साइकिल समझ में आई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो नाउ माय स्लाइड्स आर विजिबल टू यू? Yes, ma'am. No, ma'am, not now. Ma'am, your No, screen ma'am. has It's whiteboard. So visible. So now my screen is visible to you? Yes, ma'am. It is Yes, visible ma'am. now.
It is visible now. Okay, so let's go to our further. सो हमने केल्विन साइकिल पढ़ ली इसमें कि बेसिकली केल्विन साइकिल में 3 स्टेप्स थे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, जिसमें 2 स्टेप्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट थी. सो नाउ द केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C3 साइकिल और अ डार्क रिएक्शन. सो बेसिकली डार्क रिएक्शन हमें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नाइट में अकर होती है. ये जितने भी हमारे फोटोसिंथेसिस प्लांट होते हैं, मतलब सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, सब प्लांट्स के अंदर होती है इन द स्ट्रोमा रीजन. प्राची, डिड यू नो वेयर इज स्ट्रोमा इज प्रेजेंट? Yes, I don't Pragati? know. Ma'am, it is present in the chloroplast organelle. Yes, very good, Pragati, well done. So basically स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में. Now let me see the significance of Kelvin cycle. So basically Kelvin cycle का जो significance है कि एनर्जी फॉर्म करने में हेल्प करती है, एनर्जी ऑफ फूड. जैसे कि आपने देखा था उसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा था. तो प्लांट्स को अगर फूड या एनर्जी चाहिए देन इट इज डिपेंडेंट ऑन Kelvin cycle. So can you tell me in which process plant needs carbon dioxide? Ma'am, And photosynthesis. Yes, very good. सो बेसिकली केल्विन साइकिल सारे ही प्लांट्स हो चाहे एल्गी हो, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेता है और शुगर को प्रोड्यूस करता है. शुगर मीन्स ग्लूकोज को फॉर्म करता है. दैट मीन्स जितने भी हमारे ऑटोट्रॉप्स होंगे उनको अगर ग्रो करना है तो उनको केल्विन साइकिल परफॉर्म करना पड़ेगा. सो बेसिकली ये फूड प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स ये ऑल्सो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा प्लांट की ग्रोथ पे. So next we go to the evaluation. So what you learn from this cycle. So Leah, can you please tell me where the Kelvin cycle occur in plant? Plant के किस part में Kelvin cycle occur हो रही थी?